आप अहमदाबाद में घूमो वेस्टर्न अहमदाबाद और 5 मिनट में शिवालिक नहीं देखे then you are not in Ahmedabad. According to you, what is Ahmedabad of let's say 2050? I would say the way Ahmedabad is being built, वो top 3 cities में तो आएगी. So how has the journey been from the humble beginning of 1998 to becoming the Shivalik brand, which is the poster boy of real estate in Ahmedabad? So we started 98. We started with the different real estate names, not with the Shivalik. So at 21, I shifted to office from site, and I decided कि let's start with the series instead of having the different names. When you try to follow aesthetic supremacy, aesthetically अगर building को अच्छी दिखाने की आप try करते हो, commercially it affects a lot. If I compare with the Dubai or Mumbai, उनके construction cost ही 10,000 रुपये per square feet आती है. यहाँ पे हम लोग 5-6 हज़ार रुपये per square feet बेचते हैं. What is next for Chitrak Shah? What legacy do you want to leave behind? Or it is too early to ask this question? So we are working on 2030, but till now we were only earning the money. I think 15-20 years. Now we thought let's do some betterment because actually once you earn money, that is considered a fuel. But you need a destination to reach somewhere. Very well said. Everything is planned. So I think my next 20 years is set. क्या करना क्या नहीं करना, and we are working aggressively on that line. In your personal entrepreneurial journey, there would be many challenges. Challenges तो आएंगे, पर gradually कम होंगे. आगे जाके नई कोई challenge आएगी. But when you're doing business, it's a part of your journey. कि challenges तो by default आने. Welcome to another episode of Wisdom Cast. Very rarely do we get a chance to sit with people who transform the industries that they belong to. Yes, today we are sitting with Mr. Chitrak Shah, the founder and MD of Shivalik. He is a man of great wisdom, knowledge, a lot of enriching experience, and today we are privileged to be sitting with him and to absorb as much as we can in whatever 45 minutes to an hour of discussion that we can. So without spending a lot of time on introduction, because he does not require much of an introduction, as we all know him. Let's just dive into it. Chitrak bhai, welcome to Wisdom Cast. Very happy to have you here. Thank you. First of all, rarely do we get a response, from somebody like you, when we reach out. So you were so humble and kind to first respond and then accept the invite and then be on the podcast. To be honest, I would like to express my gratitude for that. Chitrak bhai, if you look at Shivalik, right? Right now it looks quite a brand, right? But I'm sure, the journey would have been full of ups and downs for the last, 26 years since, you've been into existence. So how has the journey been from the humble beginning of 1998 to becoming the Shivalik brand, which is the poster boy of real estate in Ahmedabad? How was the journey like? So we started 98. I think we started with the different real estate names. I think not with the Shivalik. Then 2001, I thought like I was 21. So I started my career with the father when I at the age of 18. So after 3 years, I was training, frankly. So at 21, I shifted to office from site. Then I decided कि let's start with the series instead of having the different name. So from 2001, and I follow a less is more from the day one. So my focus was to deal with the businessmen rather because they are quick in decisions normally. So every project, we started a series, Shivalik 1, Shivalik 2, Shivalik 3, and I think we did more than 15-20 Shivalik together in my 5 to 7 years. So that's how the journey started. And we were only majorly into the commercial buildings because cash flow runs faster in commercial. And we were only doing half of the floors, which was I think 10 floors ki jagah pe, I think we were only doing 5 floors. So turnaround time is faster. So investors earn more money, exit is faster. Constant, we were into commercials majorly. We had residential also, but that was premium bungalows. So premium bungalows जो भी थे वो भी businessmen के लिए थे. Decision time was faster again. वो शिवालिक से नाम उस time चालू हुआ gradually. So that's how we started Shivalik. Cash flow was the game. So 5 floors जो भी थे, we used to tell everyone कि बाजू वाला जो पोजीशन देगा उससे फास्ट हम लोग दे देंगे. So real estate is ultimately investment game. So the money gets faster and ROI investors की visibility because commercial project थे तो main road पे visibility भी होती है तो marketing की ज़रूरत नहीं थी, right? Half of the time में delivery कर देते थे. So that's how the brand started. Ups and downs थे. 2008 का market crash. Overall, not for long. I think 6-8 महीने में वापस recover हो गया. Yeah, but we were focused. We just wanted to be into real estate. So थोड़ा सा vertical side by side add कर रहे थे कि चलो hotel डालते हैं because that is a part of real estate. बनाना तो box ही है, अंदर का use change होगा. Then we added hotel 3-4 hotel. Then we exited. We thought this is not our job to run the business because we are already running one business. So side businesses जो भी थे trial के लिए that we tried everything. Restaurants भी किया. Then we closed down. Then focused was only a real estate. Then we had one fashion store. My wife name, she was designer. The belief was roti kapda makan gradually. Then we decided कि नहीं यार, we cannot be in everywhere. So let's focus on one.
which is our bread and butter, and since which what we are doing since long. So that's how we transform. So each and every one onto the organization was focusing only one thing: how we can make the life better, how we can make the projects better. Then gradually 2001 we thought कि different buildings बनाते हैं, constant delivery करते हैं, तो और क्या? What is the next? How people will say? So 2011 we started designing different kind of building, different shape of building. जो हाई स्ट्रीट था, देन अबेज हुआ, देन यहाँ पे इस्कॉन चार रास्ता पे एक प्रोजेक्ट किया, शिवालिक शिल्प करके दूसरा था. सो वी स्टार्टेड प्लेइंग विद द डिज़ाइन. सो दैट वाज चेंजिंग द लैंडमार्क एंड द skyline of the city, because there is someone in the city who is changing the design philosophy. Otherwise straight buildings, straight line hote the. So that's how we are trying to transform the city skyline, and gradually we are working on the different locations, but we try to add 5-7 projects in the same location. So क्या होगा, एक साथ आपको 8-10-5-7 प्रोजेक्ट मिलेंगे तो आपको वो एरिया अच्छा लगने लग जाएगा. So that's how we started. Then I think 2020 से we started adding different vertical, which is forward backward integration. इंटीरियर कर दिया, इंस्टीट्यूट we added because city change करना है तो you need a manpower, you need a developer. So we started institute, then interior किया, और customer wants full lock-in key services. So that's how diversified. Recently we started, we added fund also, because when you want to scale, when अगर 5 project हम लोग करते एक जगह पे, then rather instead of that we were focusing चलो 10 कैसे करें, 15 कैसे करें. So this fund will specially invest into the upcoming land area only, so which is just for the expansion of that area, and वो deployment कहीं और भी हो सकता है, not only in Shivalik. So that's how we have created ecosystem. So backward forward सब कर लेते हैं. So that's how the Shivalik now, earlier it used to be a real estate brand, but now you can say it's a corporate focused into the real estate. So Chitrak bhai, from your answer I can figure out that there is a lot of strategy at every step of the way. You know, right from the start, you said you were 18 when you started, and 21 when you got into real estate. No, so 18 we started with the father only. My father was stock market. Okay. A stockbroker. So I think when I joined after 6 months, he changed the business. Then beta, let's get into real estate, because we were investor into real estate. So one of our friends suggested you start your own project. Then I shifted to office, to site, and he was at office for 3 years. Then I shifted to office. Right, but at the tender age of 21, having this strategy in mind, that I want to have the Shivalik name, because I've studied this market quite closely when I was in my post-graduation. So हमारी एक केस स्टडी हुआ करती थी लोटा की. तो क्या था कि पहले there were a lot of developers, but very few developers were really a brand. The first branded developer in India was probably DLF in the north. Then came Hiranandani, which developed the entire residential compound, 70-80 buildings, Power Hiranandani, and then it became a brand. Lodha, on the other hand, the story was similar to you, right? Where the younger generation was coming into the business, and the fathers were building buildings, but those were in the suburbs of Mumbai. So they went to an advertising agency, and I was sitting with the CEO of this advertising agency in my college, and he told me this, that we gave them this strategy that whatever buildings that you do, right, aesthetically make them look beautiful, and then have Lodha, the name Lodha, as very prominent part of the name of the building. And that was a strategy that they followed. And then the next step of the strategy was, as you rightly said, in the same area, build 5-6 so that there is more visibility. So there was a very strategic brand approach that came from a CEO of one of the leading top 3 advertising agencies in India. You had this approach at the age of 21 without this background. That's phenomenal. So that was not the philosophy, but yeah, we thought this is the good way, and we tried for one project, one area. We got a good visibility, so we kept repeating the same. Yeah. And how about building this ecosystem? Is that a conscious effort or just going with the flow? So once you grow 2 decades, once you cross, then you just have to refine the things and hire the best people, available people. And you just have to give them vision कि आप ये करो, so backward forward में help हो जाएगा. And customer तो same ही है. Right. Real estate बेचने के बाद इंटीरियर उनको चाहिए तो कस्टमर तो सेम ही है. यू जस्ट हैव टू बिल्ड द प्रोडक्ट टू द सेम कस्टमर. सो आपका ब्रांड का ट्रस्ट का लिवरेज एंड उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों हो जाता है. Another thing that I admire about Shivalik is that the company is driven by a lot of technically expert people. Right. So does that contribute a lot to the success? If you can tell us what the strategy behind. मतलब कि आपकी जो टीम है इसमें, in fact even the founding team, right? Your younger brother is an engineer, right? Your father comes with a great experience. Even you come with a great experience, and there's a lot of technical expertise at play. And then you kept on hiring people जो technically experts हैं. So जो चीज़ हमको समझ में नहीं आती, we either get them on board as a consultant, either we hire them, either
पार्टनरशिप कहीं कर लेते हैं, बट द फोकस वो सेम का अच्छा बनाना है, अच्छा डिलीवरी करना है, कहीं क्रॉस कॉर्नर कट नहीं करने, एंड रियल एस्टेट में ही रहना है. सो व्हेन यू फोकस ऑन वन साइड एंड यू कीप डिलीवरिंग बेटर एंड बेटर, एंड जो भी अवेलेबल रिसोर्स है, अगर मुझे नहीं आता है देन आई वॉज नाउअडेज आई वॉज यूट्यूब कर लेता हूँ. आई थिंक 8-10 साल से जब से यूट्यूब है. उसके पहले कई बुक रीड करते थे रेफरेंसेस से. सो द जर्नी वॉज पैसे कमाने थे वो तो आ रहे थे, द कॉज वो सिटी को चेंज करना है. सिटी में अच्छा क्या देंगे, विजिबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे. सो आज लोग ऐसा बोलते हैं, अगर 5 मिनट आप अहमदाबाद में घूमो, वेस्टर्न अहमदाबाद, और 5 मिनट में शिवालिक नहीं देखे, देन यू आर नॉट इन अहमदाबाद. यस यस. So that's how we build the projects. नहीं, डेफिनेटली सिटी को चेंज किया ही आपने, और आपकी बिल्डिंग्स बहुत ब्यूटीफुल दिखती है. एस्थेटिकली दे लुक अमेजिंग. Again, was that a conscious effort that, because I know when you try to follow aesthetic supremacy, aesthetically अगर बिल्डिंग को अच्छी दिखाने की आप ट्राई करते हो, commercially it affects a lot. Yeah, so we tried अहमदाबाद में जो बीके वैसे बिल्डिंग, इफ आई कंपेयर विद द दुबई या मुंबई, तो हमारे जो सेलिंग प्राइस है उससे भी ज़्यादा उनके कंस्ट्रक्शन प्राइस है. सो सम टाइम पीपल यूज टू टेल कि अब दुबई जैसा बिल्डिंग बनाओ, वो वहाँ ज़्यादा अच्छे है, बट वहाँ पे दे आर सेलिंग एट मे बी उनके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आती है. यहाँ पे हम लोग 5-6 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में बेचते हैं. राइट. सो ये डिफरेंस है, बट वी ट्राई कि भी ये कॉस्ट में, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर हाउ वी कैन डिलीवर द बेटर वे. अगर ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा तो फास्ट बिक जाएगा आइदर वे, बिकॉज रियल एस्टेट ऑल्सो कैश फ्लो गेम. सो दैट्स हाउ वी कीप एडिंग द डिफरेंट डिजाइंस बाय अंडरस्टैंडिंग कि फास्ट बिक जाएगा. चित्रक भाई, आपने रियल एस्टेट को बिगिनिंग से एज एन एसेट क्लास देखा, राइट? और एज यू राइटली सेड दैट आई लाइक टू बिलीव इन लेस इज मोर, और आपने बिजनेसमैन के साथ ही डील करना चालू किया विद द कमर्शियल प्रोजेक्ट. सो डिड योर स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड हेल्प इन कमिंग टू दिस स्ट्रेटेजी कि यार इसको एसेट क्लास के तरीके से देखते हैं, लेट हेल्प पीपल मेक मोर मनी फ्रॉम रियल एस्टेट so that things will sell faster? I don't know, but from the day one, from the childhood, I was focused into the maths, calculations, finance. I got 90 plus into the stats and accounts and all, but very bad into the economics and everything. So from the childhood, I was into accounts and calculation, and I was focused कि मुझे ये simplify करना है, complicate नहीं करना है. So आज भी कोई CA हमारे पास आते हैं तो मैं उनकी 15-20 मिनट की जो भी स्ट्रेटेजी है वो 1 मिनट में उनको वापस देता हूँ, तो दे गेट क्लीन सिंपलर. सो ये कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब चाइल्डहुड से था. सो स्टॉक मार्केट में व्हेन आई डिड 6 मंथ, तो बहुत सारे पहले ये बाय करो, फिर ये बेचो, फिर ये बाय करो, तो फॉर मी इट वाज कंफ्यूजिंग, कैसा क्यों. सो फाइनेंस का अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन एंड मिनिमलिज्म कि भाई हमको कमर्शियल बिल्डिंग या रेसिडेंस वही बनाना है. सो वी वर नेवर इनटू द ट्रेंड्स. जैसे हम लोगों ने कभी मॉल नहीं बनाया, हम लोगों ने प्लॉटिंग नहीं किया जो अभी ट्रेंड में था, मल्टीप्लेक्सेस नहीं बनाए, वेयर हाउसिंग नहीं बनाए. सो वी वर फोकस करें हमको यही करना है. सो मिनिमलिज्म वहाँ पे भी दिखता है, स्ट्रेटेजी दिखती है कि सिंप्लीफाई दिखता है. सो दैट्स हाउ ग्रेजुअली. एंड पैसा अगर आपके इन्वेस्टर्स का बने तो ही आपके पास वापस आएंगे. अदरवाइज अगर रियल एस्टेट में लोग पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? रियल एस्टेट में वो इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं. अदरवाइज तो अगर उनको यूज करना है तो दे कैन ऑलवेज टेक ऑन रेंट. राइट, रेंट इज वन ऑप्शन, बिकॉज आपके पास पैसे पड़े एंड आपको यूज भी करना है, सो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है. अलॉन्ग विद इट यू कैन यूज ऑल्सो. सो रियल एस्टेट इज ऑलवेज वन पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गेम ओनली. चित्रक भाई, हमारी जनरेशन में, आई एम श्योर you're also quite young, but if you look at Gen Z and borderline Gen Z और late millennials, उन लोग में ये काफ़ी डिबेट होती है कि यार रेंट करना चाहिए कि बाय करना चाहिए. And because the consumerism is so high right now that people spend a lot and save a little less, than they used to before. तो उनके पास वो कॉर्पस इकट्ठा होते होते 30-35 साल लग जाते हैं, राइट? और फिर सोचते हैं यार कि अभी तो लाइफ एंजॉय करनी है, तो मैं भी रेंट पे रह लूंगा. तो ये डिबेट काफ़ी चलती है. तो वाई शुड समबडी बाय अ हाउस, राइट, while you can rent? बिकॉज अगर आप वो खरीद के भी अगर आप रेंट पे दोगे तो 5-6% रिटर्न मिलेगा, राइट? सो व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? सो अगर आपके पास पैसा आ रहा है, लेट्स से यू आर रनिंग बेटर, एंड वो पैसा आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, either whatever stock market, gold, 35 आप क्रॉस कर लोगे, बाद में तो आप फ्लैट बाय करोगे या बाद में तो अपार्टमेंट बाय करोगे. उसके पहले राइट नाउ लॉट ऑफ स्टार्टअप कल्चर आर देयर, स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम गवर्नमेंट आर देयर. सो अगर आपको लग रहा है कि ये पैसा आपको प्रॉपर्टी में नहीं डालना है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन योर ओन बिजनेस, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. पर 35 के बाद व्हेन यू ग्रो, नॉर्मली ये फिलोसॉफी है कि 35-40 के आसपास जब आदमी होता है तो उसके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है. यस, इफ ही इज इनटू बिजनेस, बिकॉज 1 साल बिजनेस में 8-10 साल निकाले होंगे तो नॉर्मली वो इतना तो हो ही जाएगा कि वो कोई प्रॉपर्टी ले पाएगा. सो आई थिंक पीपल बाय जिनको स्टार्टअप करना है. पर अगर आप पहले ही दिन से स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी करोगे एंड प्रॉपर्टी भी बाय करोगे तो आई थिंक आप स्ट्रगल दोनों बाजू करोगे. बट जॉब कर रहे हो, आपको लग रहा है स्टेबल जॉब है, आप कहीं और पैसा नहीं डाल रहे, यू आर इनटू एक्सेस ऑफ मनी,
सो आप 4% 5% रिटर्न उसका मिल रहा है, सपोज रेंटल मिल रहा है, राइट, तो बेटर है आप अपार्टमेंट ले लो, बिकॉज थोड़ा सा पैसा आपको डिफरेंस में पे करना पड़ेगा, बट यू आर बिल्डिंग योर वन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑल्सो। तो क्या होगा बाद में, यू कीप वेस्टिंग मनी इनटू एंजॉयमेंट, कहीं ना कहीं तो पैसा वेस्ट हो जाएगा, और जो पैसा आप स्पेंड करते हो वो कभी इन्वेस्ट नहीं होता है। सो वो बाद में भी आपको फ्लैट भी लेना ही है। सो बिकॉज जॉब अगर आप कर रहे हो तो लंबे टाइम तक जॉब ही करने वाले हो, तो कभी ना कभी तो ये आपको एंजॉयमेंट बंद करके कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। Let's talk about Ahmedabad's real estate market. When we have a developer like you, and also while you are the chairman of CREDAI Ahmedabad, what's the market of Ahmedabad real estate like? I'll tell you my story, Chitrak. But before that, I'm from Mumbai. I moved to Ahmedabad about 3.5 years back. So we set up an office because one client wanted us to have an office in Ahmedabad. I started traveling here. एक दिन ऐसा था कि मैं एक दिन में 6 मीटिंग करके दोपहर को घर पे लंच भी करके आया। I was like, wow, मतलब मुंबई में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, right? From north to south if you go, it's like 3-hour drive. So then I decided to move here. And then I bought a flat at 1.5 CR 3 BHK in a very good area of Ahmedabad, which could be equivalent अगर मैं मुंबई अहमदाबाद को कंपेयर करूँ तो मुझे लगा कि मैंने मुंबई के कोलाबा में घर ले लिया. And I was like, wow, this is phenomenal saving. In last 4 years, I've seen Ahmedabad transform like anything. मतलब last 4 साल में 20 साल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, right? So इसका थोड़ा विस्तार में जवाब दीजिएगा. अहमदाबाद का रियल एस्टेट मार्केट अभी क्या है और फ्यूचर क्या है? सो इफ यू सी द जियोग्राफिकली ऑफ अहमदाबाद, तो पहले आश्रम रोड चलता था, बाद में सीजी रोड आया, फिर 132 फुट का रिंग रोड आया, फिर एसजी हाईवे आया, नाउ 200 फीट का रिंग रोड. सो अहमदाबाद की जो पेरीफेरी है वो पूरी राउंड है, बीच में अहमदाबाद है, एंड गवर्नमेंट हैज़ केप्ट द रिंग रोड 200 फीट का. सो पेरीफेरी उसके अंदर है, दैट्स कंसिडर्ड एज अहमदाबाद. देन अगेन दे एडेड वन मोर जोन, वो रिंग रोड से 1 किलोमीटर दूर तक दे आर सीइंग अफोर्डेबल जोन. अफोर्डेबल मीन्स जिनके अपार्टमेंट 80 to 90 स्क्वायर मीटर के बिल्टअप पे होते हैं वो. तो इट्स नॉट कॉल्ड अफोर्डेबल एक्चुअली, बट जोन एज पर गवर्नमेंट. सो ये अहमदाबाद की जियोग्राफिकल. उसके बाद 2015 में गवर्नमेंट हैज़ एडेड BRTS, बाद में मेट्रो आया. सो BRTS में ट्रांजिट करने के लिए जो भी मेन रोड पे जो भी बिल्डिंग्स थे वहाँ पे दे हैड गिवन 4 का FSI. सो पीपल हैड स्टार्टेड बाइंग अ प्लॉट्स नियर BRTS, एंड BRTS ने एक्सपांशन करना चालू किया. ग्रेजुअली मेट्रो आया, देन गवर्नमेंट एडेड अगेन कि मेट्रो के आजू बाजू जो भी बिल्डिंग्स होंगे वो 4 की FSI. बाद में दे फेल्ट कि नहीं, बड़े रोड जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, जैसे उबर ओला है, बड़े रोड जो भी होंगे वहाँ पे भी 4 की FSI. देन दे डिड 3 साल पहले कि भी हमको सिटी को चेंज करना है, जैसे दुबई में होता है, या लेट्स नॉट रिस्ट्रिक्ट द फ्लोर्स. पहले फ्लोर्स का रिस्ट्रिक्शन था. सो आई थिंक 3 साल से 4 साल से गवर्नमेंट हैज लेफ्ट दैट कैप कि आपको जितना कंस्ट्रक्ट करना है उतना कर लो, सब्जेक्ट टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी. तो रोड के हिसाब से नाउ वी कैन बिल्ड अप टू 30-35 फ्लोर्स. सो डेवलपर भी आज बाहर जाते थे, अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करते थे, बिकॉज वो तो सालों से करते थे. पर नाउ पहले GDCR जो गवर्नमेंट की बायलॉ से वो सपोर्ट नहीं करते थे. आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ डन रिलैक्सेशन, थोड़ी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए नॉर्म्स चेंज किए. सो नाउ यू सी लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन बिल्डिंग. सो बिल्डिंग अच्छे बनते हैं तो उनके साइड के फसाड भी अच्छे बनते हैं, आगे की जो प्रीमाइसेस है वो भी अच्छी बनती है. सो नाउ यू विल सी द लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन टू अहमदाबाद. एंड अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी आया, धोलेरा इज नियर बाय अहमदाबाद, गवर्नमेंट इज फोकसिंग, ओलंपिक्स यहाँ आएगा, तो लॉट ऑफ पीपल हैविंग ट्रैक्शन की भी नहीं रहना है यहाँ पे, तो अहमदाबाद में या गुजरात में रहते एक बार एटलीस्ट एक अपार्टमेंट या एक प्रॉपर्टी ले लेते. सो NRI जो अहमदाबाद के बाहर के थे उनको लग रहा है कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर रहे थे, बेटर यहाँ पे एक घर बाय कर लो, बिकॉज पहले क्वालिटी ऑफ होम्स जो थे अभी नाउ दे आर मच मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ हाइट, स्केल, व्यू. सो आई थिंक आपको दिख रहा है 4 साल में, वी आर सीइंग अहमदाबाद 7 से 8 साल में गवर्नमेंट हैज़ डन लॉट ऑफ चेंजेस. सो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हो रहा है. Even when our honorable Prime Minister was the Chief Minister of Gujarat, he very meticulously planned this city for the future, right? Wider roads, embedding the rural areas into the mainstream Ahmedabad. We have Gift City nearby, Dholera nearby. So I'm sure this is a city being built for the future. Chitrak bhai, according to you, what is Ahmedabad of, let's say, 2050? Ahmedabad का future क्या होगा? Ahmedabad of future, how would it look like? I would say across the world, आज इंडिया को सब दिख रहे हैं कि next country will be the India. इंडिया के अंदर I would say the way Ahmedabad is being built, वो top 3 cities में तो आ ही जाएगा. So if you say पूरे world में Ahmedabad has to be in top 3 city. Quite a vision. Yeah, because Olympics 36 में आएगा. So a lot of infrastructure, we are hoping. So a lot of infrastructure are being built. Lot of government benefits are plugged in. Lot of automobile hub factories जैसे यहाँ पे सानंद है या धोलेरा है. So we are seeing कि ये I think twin city नहीं, I think 4 से 5 सिटी को इकट्ठा करके अहमदाबाद विल भी, जैसे सानंद हो गया, कलोल हो गया, गांधीनगर हो गया. So I think सभी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं. So
ये कंबाइंड सिटी होके आई थिंक अहमदाबाद हैज़ टू बी इन टॉप 3. Right. Chitra, you mentioned Gift City. Right. Whenever I go outside of Gujarat, my friends keep asking me, Gift City है क्या यार, इतनी हवा बन के रखी है, क्या है ये? So let's explain to them what is Gift City. What are the features? Why is it called Smart City? So Smart City has एक enable city जो CCTV उसकी गवर्नमेंट के 5 से 6 क्राइटेरिया. आई थिंक पूरे इंडिया में स्मार्ट सिटी तो बहुत सारी है. गिफ्ट की स्काईलाइन चेंज है बिकॉज वहाँ पे जो FSI गवर्नमेंट दे रही है, बिकॉज दे वांट वर्टिकल सिटी. सो हॉरिजॉन्टल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गिफ्ट मैनेज कर रही है. सो वर्टिकल डेवलपर को बनाना है और जो FSI कंज्यूम करनी है दैट हैज़ टू बी मिनिमम 25-30 फ्लोर्स आप बनाओगे, एटलीस्ट 20 अप, तो ही वो FSI कंज्यूम कर पाओगे. सो गिफ्ट पूरा वर्टिकल बन रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, बट इट इज़ नॉट लुक लाइक गवर्नमेंट. वहाँ पे आप जाओगे तो यू विल फील लाइक कि नहीं यार ये अलग जगह है. ग्रेजुअली उसमें 2 जोन है, एक डोमेस्टिक एंड एक SEZ. सो पूरा जो गिफ्ट का कोर है वो SEZ है. सो SEZ इज़ लाइक जो फाइनेंस के जो भी बेनिफिट्स है जो इंटरनेशनल कंपनीज को या ऑफशोर अकाउंट्स जो होते हैं बड़ी इंडियन कंपनीज के, वो सब कंपनीज वहाँ एस्टेब्लिश हो रही है SEZ के अंदर. सो उनके टेस्ट, उनके क्राइटेरिया, उनकी लाइकिंग्स या उनकी रिक्वायरमेंट वो सब वही मैच होती है SEZ के अंदर. सो दे वांट ए ग्रेड बिल्डिंग जो नॉर्मली अहमदाबाद में पहले नहीं थे, बिकॉज अहमदाबाद इज ऑलवेज ए कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट. यहाँ पे डेवलपर लेस मार्जिन में फ्लिप कर देते. सो इसके लिए अच्छे बिल्डिंग्स इतने नहीं बनते थे. सो उन्होंने वहाँ से अलग क्राइटेरिया रखा कि ऐसे बिल्डिंग बनेंगे, ऐसे क्वालिटी होगी. सो ऑल हैव स्टार्टेड बिल्डिंग देयर. सो वहाँ पे आप क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग्स आर डिफरेंट, कॉस्ट थोड़ी उसकी कंस्ट्रक्शन की हाई, जो इंटरनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करे या एटलीस्ट उनके बेंचमार्क में आए कि नहीं ये बेंचमार्क यहाँ मिलेगा. सो ये रियल एस्टेट की बात है. अभी फाइनेंस के अंदर वहाँ पे जो SEZ के अंदर 3 या 4 बिजनेसेस गवर्नमेंट ने अभी ओपन किए बिकॉज बिल्डिंग्स आर नॉट रेडी. सो वहाँ पे SEZ के अंदर जो भी फॉरेन कंपनीज है या इंडियन कंपनीज है जो फॉरेन में दुबई में कंपनीज खुलती है, यानी इंडियन कंपनीज ऑपरेटिंग इन दुबई, सो वो सब सीधी यहाँ पे कर लेगी. तो उनको दुबई या USA या सिंगापुर कहीं जाना नहीं पड़ेगा. सो वो इंडिया के अंदर है एंड बेनिफिट जो मिल रहा है वो फॉरेन का. जो भी कंपनीज फॉरेन करेंसी में बिजनेस करती है वो दुबई में ऑफिस खोल सकती है. दे हैव 3 to 4 बिजनेसेस. फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, मरीन ड्राइव है, मैरीटाइम है, सॉरी. ग्रेजुअली जैसे जैसे बिल्डिंग बनते जाएंगे वैसे वैसे दे विल स्टार्ट एडिंग मोर बिजनेसेस गवर्नमेंट. और वो आप ऐसा समझो कि वो इंडिया के बाहर की ही प्रीमाइसिस है, तो वहाँ इंडियन गवर्नमेंट के कोई टैक्सेस नहीं लगते. बट इंडियन बिजनेसेस के लिए, यानी इंडियन लोगों के लिए नहीं है ये, फॉरेन लोगों के लिए, जो फॉरेन कंपनीज है जो फॉरेन में पैसा कमाती है, वहाँ पे GST, स्टैम्प ड्यूटी, इनकम टैक्स वहाँ कुछ नहीं लगता, राइट. वो SEZ के अंदर बात. डोमेस्टिक उसके बाजू में जो SEZ में कंपनीज है उनको डोमेस्टिक हेल्प चाहिए. डोमेस्टिक हेल्प के लिए गवर्नमेंट हैज़ डन डोमेस्टिक एरिया जहाँ पे लोकल लोग बाय कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे लॉयर है, टैक्सेशन वाले, फिर बहुत सारे जो सपोर्ट सिस्टम है वो वहाँ पे दे कैन ऑपरेट देयर ऑफिसेस. और उनको SEZ में जो भी एंटिटीज है उनको सपोर्ट करके दे कैन बिल्ड देयर बिजनेसेस देयर. So that's how they divide in 2 parts. Now government is adding extension of Gift City. वो 2200 एकड़ और नया ऐड कर रहा है. So वो जो लैंड है वो लोकल लोगों की लैंड है. So but plan passing authority, sanction authority will be gift. So now I think there are 2 parts, domestic and the international. But now there is also extension. So करीबन गिफ्ट 3200 एकड़ के आसपास बनेगा. And I think 10 लाख लोग गिफ्ट में रहेंगे. That has been told by someone. Let's see. So, if people in India want to invest in Gift City, they can only invest in the domestic part of it. They cannot even invest in the real estate of the SEZ section. No. You can build a project. You can be a partner of the developer, but you cannot own the property. So, even the vertical infrastructure in the SEZ zone, right, that is being developed by the government or the outsiders, or that can be done by companies like you? Infrastructure, road, lightings, electric, water connection, MEP, ACs, all are being provided by government. So they are only giving us a plot with the boundary and the FSI area. आप ये plot में इतनी height और इतना construction कर सकते हो. And there is some standard कि ये standard के हिसाब से आपको बनाना है. Why should somebody invest in Gift City? Because India आज पूरे world में ज़्यादा focused है. After China, right now every companies are focusing more into India. Because now India has the more population than China, I guess, right? Yeah, with the new census it will be established. Yeah. So gradually India will become the international hub. So सब यहाँ पे आएंगे, so foreign companies यहाँ पे आएगी. तो government has done that SEZ के अंदर जो IFSC
रजिस्टर्ड होंगे, सो यहाँ पे ही उनको ऑफिस खोलनी पड़ेगी। इनके आज आप देख रहे हो ग्रेजुअली ये रिक्वायरमेंट लोगों की बढ़ेगी यहाँ पे इंडिया के अंदर आने के बाद। सो ये आज का जो प्राइस है, जैसे BKC आप समझो, ऑल्दो टैक्स स्ट्रक्चर वहाँ पे ऐसा नहीं है, बट ये ग्रेजुअली अच्छा एरिया बनेगा। जैसे अहमदाबाद में या पूरे इंडिया में देखो तो ये गवर्नमेंट ने खुद जीरो से प्लान की हुई सिटी है विद द फ्यू स्टैंडर्ड्स। तो ये जो ऐसे लोग हैं जिन पास एक्स्ट्रा पैसा है, जिनको खाली यूज़ नहीं करना, खाली इन्वेस्ट करना है, बिकॉज वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ आएंगे दे विल रेंट इट आउट, हाई सैलरी पेड होंगे, तो उनका एक्सपेक्टेशन भी अच्छा होगा और उनका पे आउट भी अच्छा होगा सैलरी के लिए। एंड कभी आपको अहमदाबाद में शिफ्ट होना है एंड यू वांट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड स्काईलाइन, तो यू कैन ऑलवेज स्टे देयर और ओपन योर ऑफिस एंड यू कैन वर्क देयर। सो अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना ही है, सो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दो। दैट्स व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर इनटू द गिफ्ट सिटी। Chitrak bhai, you're at this point serving as the chairman of CREDAI Ahmedabad. So what are your priorities at this point? So I'm always into innovation and new things and simplifying things. So this post has been created recently, and my role is to have the strategic changes, the requirement, जो day-to-day affairs है, day-to-day operations है, that I am not looking after. So first was let's omit one confusion जो super built up वाली है. So we did that last week. अभी उसका कैंपेन धीरे धीरे चलेगा. So it's a awareness campaign. I think that will last for 3 से 4 साल करना पड़ेगा, तब लोगों को समझ में आएगा. दूसरा, गवर्नमेंट के विजन के साथ बैठ के क्या क्या रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट, अगर ओलंपिक्स की बात करें तो 2036 के लिए सिटी में बायलॉज कैसे चेंज करने हैं, क्या चेंज करना है, बिकॉज वी हैव द मोस्ट वर्सेटाइल प्रोजेक्ट्स इनटू द सिटी. सब जगह काम किया है, गिफ्ट से लेके रीडेवलपमेंट से लेके सब. डायनामिक स्टाफ है, डायनामिक टीम है, विजन है. सो दूसरा, गवर्नमेंट के बायलॉज के अंदर क्या क्या चेंज करना है वो. थर्ड इज हमारे जो भी मेंबर्स है उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्रेडाई के डेवलपर, आई मीन नॉट मेंबर्स पर उनके साथ सराउंडेड लोग, जैसे चैनल पार्टनर है विच ए रियल्टर और ब्रोकर, उनके साथ रिलेशन बना के कैसे अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर पाए, या कॉन्ट्रैक्टर्स है या वेंडर्स है या नए स्टार्टअप या इकोसिस्टम जो भी है या टेक्नोलॉजी है. सो ये एक साथ मिल के सभी अलग अलग जो भी स्टेक होल्डर्स है रियल एस्टेट के, नॉट ओनली अ डेवलपर, उनके साथ मिल के हाउ वी कैन मेक द सिटी अ बेटर वे, by way of changing the bylaws, by way of changing the measurements, by way of adding few CSR activities, which normally I don't looking after, but we know what city required, right? So we can convert that into CSR, then we can have the better. So the focus is quality of life of the Ahmedabad city by way of simplifying, by way of changing the norms, by way of changing the pattern. So that's what the focus is. I have 15-20 agendas. So normally I take one agenda per month. And gradually few agenda will affect the public, few is for the internal. Right. I'm sure they're all for good. Chitrak bhai, so this was your initiative, super builder versus carpet area, जो discussion भी चल रहा है. So team is a CREDAI board. We sit together, we define, and we pick one. जो this is good, because ideas तो बहुत सारों के होते हैं. How you implement, how you transform, that is important. Sometimes you have idea but you make things more complicated, तो सामने वाले को समझ में नहीं आता है. So it's a board decision. Right. But ये बहुत ही important step है, because you know when I was buying property here, so मैं मुंबई से आ रहा हूँ और यहाँ पे मतलब वो स्क्वायर फीट की बात करते हैं, मैं फ्लैट देखने जा रहा हूँ, ये 3000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है. मैं जाकर देखता हूँ यार 3000 लग तो नहीं रहा है, बिकॉज मेरे दिमाग में तो वो कारपेट वाली चीज़ ही चल रही है, बिकॉज वहाँ पे तो कारपेट की बात होती है. लाइक नो, दिस 3000 इज सुपर बिल्डअप. सो इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर मी एंड आई वॉज वेरी यंग एट दैट पॉइंट, राइट. तो पहले तो मुझे समझना पड़ा ये होता क्या है, राइट. सो इट्स यू नो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू हैव टेकन. No, our current president is dynamic Dhruv, so he has also few things in mind. So we combine together, जो idea उनके या मेरे या कोई और बोर्ड के होते हैं, वो सब इकट्ठा करके उसको स्ट्रीमलाइन करते, कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे कैसे क्या कनेक्ट करना है. So that's how we implement the things. All right. So I think we've discussed a lot about business. Let's now discuss Mr. Chitrak as an entrepreneur and as a person. You mentioned that you were very sharp in accounts and mathematics. I would like to understand more, how were you as a teen or as a young boy? Were you always this curious, creative, enterprising person? So from the childhood, I was very focused. Let's say I used to play a Lego blocks. उस time Lego इतना famous नहीं था, so availability भी नहीं थी. So कहीं और एक अंकल ने मुझे Lego gift दिया था, और with the local things combine करके मोटर कहीं और से निकाल देता, जैसे फैन हो तो वहीं से मोटर निकाल देता था,
कुछ ना कुछ घर पे आया तो उसको खोल के वापस उसके ब्लॉग से यूज़ कर देता था. तो देन यूज टू मेक लॉट ऑफ थिंग्स कंबाइन करके. सो आई वॉज वेरी फोकस्ड. एक जगह बैठता था तो खाए पिए बाथरूम जाए वगैरह 7-8 घंटे बैठता था. मम्मी आके खाना खिलाती थी दैट वे. बिकॉज एक बार एक जगह फिट हो गया तो ये ख़त्म करना है. सो ग्रेजुअली वहाँ से फिर कैलकुलेशन समझ में आता था. बिकॉज कैलकुलेशन इज लॉजिक. वो रटना नहीं है. यू हैव लॉजिक. एंड आई वॉज वेरी लॉजिक ओरिएंटेड गाय कि ये प्रोसेस एंड लॉजिक दैट्स हाउ इट शुड बी. एंड प्रोसेस इज अ DNA ऑफ माइंड. सब चीज़ को ऑटोमेट करो, सब चीज़ को प्रोसेस करो. सो फॉर्मुलेशन में, अकाउंट्स में, स्टैट्स में प्रोसेस ही होता है. सो समझ में आ गया कि नहीं, दिस आर सिंपलेस्ट थिंग बिकॉज इसमें प्रोसेस है. ये और ये करो तो ये होता है. ग्रेजुअली प्रोसेस में भी सेम है. आप जिम में रोज जाओगे तो बॉडी बनेगी. वो अच्छा लग रहा था, समझ में आ गया लॉजिक्स भी. सो स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग बिकॉज ट्राई करते. बिकॉज प्रोजेक्ट्स तो बचपन से करता था. जैसे स्मॉल प्रोजेक्ट्स कर दिए. फिर उसको रेवेन्यू समझना, टेकी होना, नए टेक्नोलॉजी से लेना. और टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सपोज यूट्यूब आ गया तो उसमें R&D करता था, प्रोजेक्ट्स देखता था. तो जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो फीड हो रही थी माइंड में कहीं ना कहीं. तो ऑलवेज बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन वी वर इनटू द न्यू थिंग्स ऑलवेज. सो वो चेंज होती रहती थी. सो द DNA वॉज कीप ट्राइंग न्यू थिंग. फोकस्ड रहो, सिंपलेस्ट रहो एंड लॉजिक के साथ रहो एंड प्रोसेस ओरिएंटेड रहो. सो व्हेन यू कंबाइन ऑल दिस थिंग्स, और जहाँ आपको फोकस करना है वही चेंज करो. जहाँ आपको फोकस नहीं करना है, विच इज़ नॉट हैविंग वैल्यूज, लाइक खाना, लाइक कपड़े, which is not the value. You can wear black also, white also. You can eat anything. वो सबको रिफाइन करके लॉक कर दिया. यही खाना है, यही पहनना है. जो R&D करनी है वो बिजनेस में करनी है, राइट. तो दैट रिफ्लेक्ट्स इनटू द बिजनेस. सो वो DNA था, वो ग्रेजुअली यहाँ पे दिख रहा है. Right. So this gives a very interesting perspective, Chitrak bhai. Usually people, misunderstand minimalism as less is more, and then they follow it in every aspect of life. And in that process, they don't do much productive things, right? In your case, I mean, I was surprised when I saw your office, right? I mean, of course, the kind of stature that you have. I've been to the offices of, business people of similar stature. Highly decorated offices, very animated stuff, It would have like 50, art pieces, in the room and all that. Your office is very minimal. So you're a minimalist. But you have a strategy in place that I want to be minimalist at the places which are not value addition. But things that add value, I want to, give it, enough importance and time. I think that's great. चित्रा भाई, अगर अभी हम शिवालिक को देखें तो शिवालिक के सामने अगर चित्रा भाई को हम वो कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लगता है कि यार उनकी जर्नी तो बड़ी मस्त रही होगी. Because the kind of success that the brand has right now. But I'm sure in your personal entrepreneurial journey, there would be many challenges. So for the learning of the younger audience who aspire to be an entrepreneur, who look up to you as a businessman, अगर आप उनके लिए कुछ किस्से ऐसे बता सको कि कुछ challenges हो आपकी लाइफ में और आपने कैसे सॉल्व किए उनको. Challenges तो बहुत आती है when you are doing business. Market collapse होता है, litigation लैंड के आते हैं, income tax की रेड 2 या 3 बार. बिकॉज रियल एस्टेट है, थोड़ा सा कैश तो पहले था. अभी वी आर वर्किंग मोस्टली इन टू चेक. सो अप्स एंड डाउन्स. प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई ना कोई इश्यूज, रोज कोई ना कोई इश्यूज आते हैं. फैक्ट्रीज और रियल एस्टेट में फ़र्क क्या है? फैक्ट्री में आपने एक बार परमिशन ले ली, देन यू जस्ट हैव टू कीप बिल्डिंग प्रोडक्ट. हमारे में ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट्स में हमको गवर्नमेंट के पास जाके सब टाइटल लेके अप्रूवल लेनी पड़ती है. सो आई थिंक दिस और करीबन 25 से 30 साल की NOCs एंड अप्रूवल्स है. तो ये ग्रेजुअली पूरी चैलेंजेस है, वो डे टू डे अफेयर में रहती है. उसके बाद छोटे मोटे इश्यूज, ये मेंबर को कोई कंप्लेन है या ये सब तो रोज़ की होती है. मेंबर को या वेंडर को या कोई ना कोई इश्यूज होते हैं या स्टाफ को कोई इश्यूज है वो. पर मेन जो भी है वो टाइटल या मार्केट कॉलेप्स या कोई अनफोर्ड सीजन जैसे अर्थक्वेक आ गया या कोई कोविड आ गया. और ये हमारा जो बिज़नेस है ना वो इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक बिजनेस है. इट्स लाइक रनिंग एलिफेंट. अगर वो बंद भी, अगर एक बार स्टॉप भी कर दो आप, तो पैसा तो या तो आपने डेट लिया होगा तो वो तो इंटरेस्ट चालू ही है. ऑल्दो वी आर ऑलमोस्ट नाउ डेट फ्री. धीमे धीमे करके डेट हमारी कम हो रही है. आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस ईयर हो जाएगी. बट देन वी शिफ्टेड इनटू एसेट लाइट मॉडल. सो वो निकल जाए. कैश ऑलमोस्ट निकाल दिया, सो वो भी निकल जाए. अभी लिटिगेशंस में गवर्नमेंट काम कर रही है कि लिटिगेशन कैसे कम हो. सो पहले के टाइम पे लिटिगेशंस बहुत थे और मार्केट जो कॉलेप्स होता था उसमें मेजरमेंट्स नहीं थे बिकॉज टेक्नोलॉजी कोई नहीं थी. अभी तो सोशल मीडिया भी आ गया, मेजरमेंट्स भी आ गए, बिजनेस टूल्स आ गए जहाँ पे आपको रिपोर्ट एनालिटिक्स मिलते हैं.
तो इवन जो मार्केट कॉलेप्स होने की बात थी वो आई डोंट थिंक सो अभी होगा. सो पहले जो हम लोग ने जो चैलेंजेस फेस किए आई थिंक अभी उतनी नहीं होनी चाहिए. बट यू शुड ऑलवेज फोकस इफ समबडी स्टार्टिंग न्यू बिजनेस का आप नया क्या कर रहे हो या अलग क्या कर रहे हो. अगर सेम चीज़ बेचोगे, सेम चीज़ बनाओगे तो वो कमोडिटी हो जाएगी. एंड देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन कमोडिटी एंड एस्पिरेशन वैल्यू. सो चैलेंजेस तो आएंगे पर ग्रेजुअली कम होंगे, आगे जाके नई कोई चैलेंज आएगी. बट व्हेन यू डूइंग बिजनेस इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी कि चैलेंजेस तो बाय डिफॉल्ट आने वाले हैं. Who's your mentor? Who's your guiding star? Whenever you're stuck, who do you go to? So frankly, I don't have any specific mentor. So for me, each and every topic has some different connection. कि इसको अगर ब्रांड देखनी है तो इकोसिस्टम देखनी है तो एप्पल की देखो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ. स्केल देखना है, स्पीड देखनी है तो अदानी की देखो, राइट. बट आई फॉलो मेनली इनटू वन कैटेगरी. सो इंडियन कंपनीज में ऑल इंडियन कंपनीज आर नॉर्मली दे आर इनटू लॉट ऑफ different verticals. So that's their philosophy. Gradually, we are not so big right now, so we can think of that line. But and individually, normally I try कि मेरा जो past है उससे मैं betterment कैसे करूँ. So ऐसा कोई mentor कुछ identify नहीं किया, but yeah, brand I like. Of course, I mean you could take inspiration from anywhere. Do you read books? पहले करता था, अभी उसके क्रक्स यूट्यूब से निकाल लेता हूँ. Very smart. Chitrak bhai, you travel a lot. I mean, we follow you on Instagram and we see some, travel posts and keep posting them, by the way, very enjoyable. So what are your favorite destinations? I like Dubai because nearby. अब हिंदी भी बोलो तो भी चल जाता है. Then gradually you see the lot of skyline, the new infrastructure, anything which you expect are in Dubai now. सो कन्वीनियंस है, सुबह जाओ 2 घंटे और दूसरे दिन वापस आओ तो भी चले. लग्जरी लाइफस्टाइल भी है. सो यू सी आपको बिल्डिंग्स कैसे अच्छे मिलेंगे और लोग भी इंस्पायर्ड बहुत है दुबई से. सो कनेक्ट भी आता है. बट चिल आउट करना हो तो यूरोप, वहाँ पे जाके स्ट्रीट पे बैठो, यू सी पीपल हाउ दे एंजॉय. बट मेनली आई लाइक दुबई मोर बेटर. What is next for Chitrak Shah? What legacy do you want to leave behind? Or it is too early to ask this question? So we are working on 2030. The model is the transforming the city or the real estate. With the real estate, it can be multiple cities later on. But till now, we were only earning the money. I think 15-20 years. Now we thought, okay, let's do some betterment. Because actually, once you earn money, that is considered as a fuel. But you need a destination to reach somewhere. Right? Very well said. तो आज तक तो खाली हम लोग फ्यूल इकट्ठा कर रहे थे कि पहले फ्यूल तो लाओ फिर गाड़ी चलेगी. सो नाउ फ्यूल आ गया, वी हैव व्हीकल्स नाउ ग्रेजुअली एंड डेस्टिनेशन वी ऑलरेडी अलाइन. आई थिंक ग्रेजुअली विल रोल आउट क्या करना है क्या नहीं, बट एवरीथिंग इज प्लान नाउ. सो आई थिंक माई नेक्स्ट 20 years इज सेट, क्या करना है क्या नहीं करना, एंड वी आर वर्किंग अग्रेसिवली ऑन दैट लाइन. Nice. So vision clear है. Superb. Chitrak bhai, you recently launched Shivalik Investment Fund, AIF 2 category. I invest in AIFs, by the way, and I've also invested in real estate AIF that is, being managed by Edelweiss. And I always feel that, especially in real estate AIF, there has to be a real estate player who really understands this business in and out, right? So tell us a bit about that, fund and what's the future like. So अब डॉट्स कनेक्ट करने जाओ ना तो लोगों को जगह पसंद है. जगह में स्टॉक्स नॉर्मली नहीं होते, बैंक लोन नहीं देती, एंड जियोग्राफिकली देखो तो वी वर गुड इन टू मेकिंग द डिफरेंट एरियाज. सो वहाँ पे अगर हम लोग कर रहे तो पैसा लोगों को भी इन्वेस्ट करना था, पर डिफरेंट रूट से वो करते थे जो अनऑर्गेनाइज वे नहीं था. गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ जो भी गवर्नमेंट जो नॉर्म्स थे वहीं कहीं ना कहीं हम लोग डिफॉल्ट हो जाते. सो वी थॉट वी स्टार्ट सम फंड. आई वॉज वर्किंग ऑन दिस फॉर्मेट सिंस 2015, बट तब हम लोग बहुत छोटे थे इसके लिए. सो ग्रेजुअली समझ में आया, वर्क किया, हायर द गुड पीपल, देन वी लॉन्च द फंड AIF. सो देयर इज फर्स्ट वर्टिकल. राइट नाउ इट इज़ द फर्स्ट व्हीकल इज AIF 2. ग्रेजुअली वी में एड अदर व्हीकल्स ऑल्सो इन टू द इन्वेस्टमेंट फंड. ये व्हीकल है सिटी को ग्रो करने का. सो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, बिकॉज क्या होगा अगर आप मुझे अनसिक्योर लोन से पैसा दे दोगे तो दैट आई कैन टेक इट. वो स्केलेबल फॉर्मेट नहीं है. वी वांट स्ट्रक्चर फॉर्मेट, स्केलेबल फॉर्मेट विद द गवर्नमेंट गाइडलाइन, एंड हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनको सिक्योरिटी मिले. कोई भी बड़ी कंपनीज है वो उसका पैसा तो पब्लिक से ही आता है, बाय वे ऑफ IPO, बाय वे ऑफ स्टॉक्स, बाय वे ऑफ मे बी अनसिक्योर्ड लोन, आइदर वे. सो दिस इज वन व्हीकल जो हम लोग नए एरिया में आगे इन्वेस्ट करेंगे. जो हमारा 100 रुपये सपोज, तो 100 रुपये में 5 प्रोजेक्ट होते तो इमेजिन करो हमारे साथ और 1000 रुपये छूट जाए.
so we can scale out faster. So that's how we started a fund, and 50 to 60% the focus is onto the land investment into upcoming area. और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद पहला ऐसा फंड है गुजरात में. आई थिंक गुजरात में 7-8 हुए, बट वो रियल एस्टेट में वी आर द फर्स्ट वन, राइट. बाकी तो फाइनेंशियल कंपनीज ने किया आई थिंक. सो हु अंडरस्टैंड बेटर, जो रियल एस्टेट खुद चला रहा हो, खुद बिजनेस चला रहा हो, एंड उन्हीं के वहाँ आपको इन्वेस्ट करना है. तो ब्रांड की जो लीगेसी और ट्रस्ट है उसका बेनिफिट भी मिलता है, उसका विजन भी मिलता है, एंड वही ओनर्स आर कंट्रोलिंग द फंड ऑल्सो, सो उसका बेनिफिट भी मिलता है. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट टू लॉन्च. We already got SEBI approval, but I think next week mostly we'll launch. Chitrak bhai, you seem very fit and healthy. And I think it's very important for people in business, or let's say in any career, to take care of their own selves, because that is what people usually neglect and then regret afterwards, right? So how do you keep yourself fit, and what message would you like to give to the young entrepreneurs about fitness and health? So from the childhood I was my body is bit heavy from childhood, so I cannot be so lean, but at least every day 5 days a week 1 घंटा मैं खुद पे देता हूँ. नॉर्मली वर्कआउट पहले कांस्टेंट वर्कआउट था. आई थिंक 3-4 साल से 40 मिनट्स वर्कआउट एंड 20 मिनट मेडिटेशन, बिकॉज बहुत सारे आइडियाज़ माइंड में आते हैं. सो माइंड एंड बॉडी दोनों को आपको काम एंड कंट्रोल करना पड़े. सो आई थिंक कोई मेडिटेशन करे नहीं करे, बट वर्कआउट इज़ द बेसिक पार्ट, जिससे बॉडी में गुड हार्मोन्स जनरेट होते हैं, विच हेल्प्स यू टू टेक डिसीजन. बिकॉज इफ़ यू आर फिट, आपका बॉडी टाइट है, यू आर ड्रेस्ड वेल, एंड उसका रिफ्लेक्शन आपको बिजनेस में मिलता ही मिलता है. सो नॉट फॉर एटलीस्ट 1 घंटे के लिए नहीं, पर अगर आपको अच्छा बिजनेस भी करना है तो वहाँ पे उसके डिसीजन का रिफ्लेक्ट दिखेगा. सो वर्कआउट इज मस्ट. माई एंटायर फैमिली, माई फादर, ब्रदर, मॉम, वाइफ, माई सन, माई नेफ्यू, भाभी, सो घर में 8 लोग हैं, 8 लोग वर्कआउट करते हैं. माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंड मदर. So it's a DNA of the family. Right, runs in the culture of the family. Wow. Actually, we make shapes. So building your body, दोनों में shape बनता ही है. Very well said. All right, on that note, I think we will conclude this interview. Thank you so much, Chitrak bhai, for your time. Thank you very much. Yeah, it's been a great pleasure to have this conversation with you. It's been very enriching for me. Thank you.